Hey guys, so I'm here with something special. Yeah, I know that's so. I'm here with the chapter of English, the portrait of lady. The first chapter from your English book. Okay, so let's start with the chapter. So this is for standard 11. So there's some good news for you guys that I'm going to continue with your batch for 11, and I'm happy to teach you guys. So let's start it off. Oh, so here's the first chapter. Uh, yeah. So this is the chapter Portrait of a Lady, and its writer is Kushwan Singh. He's an Indian writer. Okay. So he's talking the portrait of a lady. So we can guess that there is something about a lady. Portrait means what we can say, like artists used to talk like sometimes they used to talk like I have made a portrait of him, his or her, like. So portrait is commonly the what we can say, like the physical appearance of someone. So here the portrait is about a lady. So it's a portrait of a lady. So why did the writer give this name, this type of name to the chapter? So that's we gonna learn it further. Okay. So we'll see how why writer gave this type of name. So let's move forward. So we just gonna read this. So I hope the thing is visible to you. So writer is Kuswan Singh. Okay, remember the writer's name. It's important to remember the writer's name. So let's begin. So my grandmother. I'll underline the important one. I'm just reducing the length of broadness of my inking pen. Okay. So my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. Okay. So she was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years I had known her. Okay. So writer know her from last 20 years, and she was old and wrinkled. So why am I highlighting this? Because these are the keywords that you need to remember while memorizing the story. Okay, the problem is that we don't remember that how old the boy was, like in normal stories, how old, in which year did this shift. Like I'm just giving an example, but that's the thing which is important. Okay, if you write those things, and those things would attract teachers, the checker. Okay, so that is what important for the 20-year. Okay, so I'm just reading it again. She had, okay, let me highlight this. Okay, I'm highlighting with yellow. She had been old and wrinkled. Oh, I'm sorry. She had been old and wrinkled for the 20 years I had known her. People said that she had once young and pretty. Okay, so sometime it could maybe ask that what is the like physical appearance of granny in olden days and even in current days, like that could be asked. So you should remember that in olden day granny was young and pretty, and currently, as the age goes off, our skins also get old, and obviously we get wrinkled. Okay, so this is how you need to write. Had even and I had even a husband, but that was hard to believe. Okay, so writer is telling it was hard to believe that she has a husband. Okay, okay, she didn't believe like behave like that she would have a husband. Okay, my grandfather's portrait. Okay, the writer is telling that his grandfather's portrait. So this question may be asked that may
can be asked that where did the grandfather's portrait hung? Okay, so let's have answer further. So my grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. Okay, so hung above the mantelpiece in the drawing room. So remember this. Mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and a loose-fitted clothes. Sorry. Okay, so this is also something important. Okay, let's do something else. I'm just removing this. I'm highlighting with others, so we'll highlight with different colors. Grandfather का अलग है, so we'll highlight it with different color. Okay. Okay. So this is the important. Then he wore a big turban. Okay, this and a loose fitting cloth. His long white. Okay, so my grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. Okay, so in a drawing room there is a mantelpiece. Okay, mantelpiece. There's a like a showpiece. कहते हैं शो ऑफ करने के लिए, जस्ट लाइक डेकोरेटिव मटेरियल्स. उसके ऊपर वॉल के ऊपर हंग किया गया था ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट. ओके, सो हाउ वाज हिज अपीयरेंस? लाइक इट कुड बी आस्क्ड व्हाट वाज हिज अपीयरेंस. सो वी कैन राइट दैट ही वोर अ बिग टर्बन. लाइक वो सिर पे टर्बन पहनते, फेटा. वी टेल फेटा इन आवर लैंग्वेज. आई डोंट नो व्हाट यू गाइस टेल. पगड़ी या पगड़ी पहनते. ही हैज वोर अ पगड़ी and a loose clothes. Okay, his clothes were like so loose. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. Okay, so he was looking so old. So why? Question is that, okay, let me explain it first. Like he was having a beard means मतलब दाढ़ी you may know, like तो दाढ़ी का पार्ट उनका चेस्ट तक कवर होता था उनका, और वो इतने बूढ़े लगते थे. ही यूज्ड टू लुक लाइक ही वाज लाइक 100 years old. Okay, so this is at least 100 years old. He used to look like he was कि वो 100 years old है. So अभी now I ask you, अभी मैं आपको पूछना चाहती हूँ that why it was hard to believe that writer's grandmother have husband. Okay, so answer is that कि writer believed that his grandfather looked like 100 years old. Okay, तो वो बहुत ही ओल्ड लगते थे, ग्रानी से भी बहुत ओल्ड लगते थे. तो उन्हें लगा कि उन्हें बहुत बिलीव करना बहुत हार्ड लगता था कि इतने बूढ़े इंसान ऐसे दिखते हैं, तो मेरी दादी कैसे इतनी प्रिटी दिख सकती है. ओके, सो that was the problem. Did not like a sort of person who would have a wife or children. Okay, so he didn't look like he didn't look like the sort of person who must have a children. Wife or children. Okay, he didn't look like a sort of person who had wife or children. He looked as it he could only have lots and lots of grandchildren. Okay, so he looked, वो इतने बूढ़े दिखते थे कि उनके grandchildren से उतने बूढ़े दिखते थे. He would have a lot of grandchildren. Okay, तो writer ये believe करते. As for grandmother being young and pretty. Okay, grandmother being young and pretty, I thought it was almost revolting. So मेरे लिए ये मानना, राइटर इज टेलिंग दैट, मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल था कि ग्रैंड मदर पहले के समय मतलब ओल्डन डेज में शी वॉज यंग एंड ब्यूटीफुल. ओके, तो ये रिवॉल्टिंग था. रिवॉल्टिंग मीन्स अपोजिट था, पूरा ना मानने जैसा था. ओके, शी ऑफन टोल्ड अस अबाउट द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ child. Okay, she used to play some games as a child, so she often tell those things to her grandson, who is our writer.
that seemed quite absurd and undefined on her part. Okay, so this, it was quite absurd and undefined. Okay, so it was something which was like writer couldn't believe that. Okay, so that's the something, and we treated it like a fables of prophets she used to tell us. Okay, she had always been short and fat and slightly bent. Okay, so this is the appearance of grandmother when she was old. Okay, old. Okay, it's old. When she was old, उनका appearance ऐसा था. Her face was creases and creases. Okay, wrinkles and creases running from everywhere. Okay, okay. This is the appearance of grandmother. No, we were certain she had always been as we had. Okay, so we'll read this. No, we were certain she had always been as we had known her. Okay, so writer is telling that मुझे लगता है कि वो हमेशा ऐसी ही रही है जैसी वो अभी है. Old, so terribly old. Okay, writer is telling that she was terribly old. बहुत old लगती थी. She could not have grown older. वो इतनी old हो गई थी कि वो अभी उससे ज़्यादा old हो ही नहीं सकती थी. Writer is telling that. I had stayed at the same age of 20 years. वो ऐसी की वैसी ही रही है. वो 20 साल से उन्हें जानते हैं, तो 20 साल में वो ऐसी की वैसी ही रही. उनमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है. बट शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी. राइट इज टेलिंग दैट मुझे नहीं लगता था कि वो प्रिटी दिखती थी पहले, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. अब प्रिटी नहीं दिखती थी लेकिन वो खूबसूरत ज़रूर दिखती थी. राइटर इज टेलिंग दैट शी hobbled out about the house in a spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stop and other telling the beats of her rosary. Okay, so वो घर में कैसे घूमते थे? वो घर में इस तरह से घूमते थे. वो अपना एक हाथ अपनी कमर पे रखते थे ऐसे और झुक कर, मतलब बूढ़े लोगों में लोग थोड़ा झुक के चलते, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती, तो वो झुक के चलते थे और उनका एक हाथ उनके सपोर्ट के लिए अपनी कमर पे रखते थे और दूसरे हाथ में शी यूज टू टेल द बेट्स ऑफ हर रोसरी. ओके, सो बेट्स ऑफ हर रोसरी मतलब वो माला जपते रहते थे. तो ये भी लिखना ज़रूरी है. सो या द वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप्स एंड अदर टेलिंग हर द बेट्स ऑफ हर रोसरी. ओके, her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly move in an inaudible voice. Okay, वो हमेशा inaudible voice में कुछ ना कुछ constantly उनके lips ऐसे लाइक कुछ बोल रहे वैसे ही लगता था, लेकिन वो सुनाई नहीं देता था. वो अपने मन लाइक इनऑडिबल वे में वो अपना भगवान की जो स्क्रिप्चर्स होते थे वो उसका जाप करते रहते. सो राइट इज टेलिंग दैट येस शी वॉज ब्यूटिफुल. दैट इज नाउ टेलिंग दैट शी वॉज ब्यूटिफुल. शी वॉज लाइक विंटर लैंडस्केप इन अ माउंटेन. ओके, लैंडस्केप मतलब एक ज़मीन जिसमें ज़मीन हो वैसी ड्राइंग. तो विंटर लैंडस्केप इन अ माउंटेन, लाइक माउंटेन की एक ब्यूटीफुल सी पेंटिंग हो वैसी, उतनी ब्यूटीफुल थी उनकी ग्रांड. एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सैनिटरी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. ओके, इज टेलिंग दैट प्योर वाइट सैनिटरी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. ओके, सो उन्होंने ये वर्ड्स उनकी दादी को डिस्क्राइब किया कि एक सेरेनिटी, एक प्योर वाइट सेरेनिटी जो एकदम शांत और कंटेंटमेंट से भरी हुई है. ओके, सो दिस हाउ ही डिस्क्राइब हिज ग्रैनी. ओके, नाउ माय ग्रैंडमदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. ओके, गुड फ्रेंड्स. माय पेरेंट्स
left me with her when they went to live in city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready. Okay, so what did daddy used to do? She used to wake him up and get him ready for the school. She said her morning prayers in a monotonous singing sound. Okay, what's monotonous singing sound? Monotonous मतलब like weird voice में, मतलब ऐसे सुरीले आवाज़ में नहीं, in a somewhat weird voice. Okay, so like that. Not like singer, professional singer. It's just like praying God like. So राइटर्स टेलिंग वो मुझे सुबह उठाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी, मॉर्निंग प्रेयर्स गाती थी, मुझे नहलाती थी, मुझे ड्रेसअप करवाती थी, और उन्हें लगता था कि जो वो प्रेयर गाती है मेरे कानों में वो मैं सुनता हूँगा. बट ओके, जस्ट सॉरी, writers telling that me in the hope that I would listen and get knew it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Okay, so writers telling me हाँ उन्हें लगता था कि वो रोज़ बोलेंगे तो मुझे याद रह जाएंगे, लेकिन नहीं, मैं याद बिल्कुल नहीं रखता था, मुझे तो सिर्फ उनका आवाज़ अच्छा लगता था, इसीलिए मैं सुनता. तो ये बात थी राइटर. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them in a bundle and hand it to me. Okay, now see. So एक वुडन स्लेट थी, पहले के ज़माने में तो वुडन स्लेट ही आती थी, तो वो अपने उनके एक किस में पैक कर देते थे. शी यूज्ड टू पैक्ड इट विथ लाइक टाई कर देती थी, एक कपड़े में ले जाते थे. पहले के ज़माने में तो बैग वैग ऐसा कुछ था ही नहीं. और वो प्लेट थी, उसे वॉश करना पड़ता था दूसरे दिन यूज़ करने के लिए, और वो येलो चॉक से वो लिखते थे. और एक अर्थन इंक पॉट मतलब मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट. एक रेड पेन भी वो रख देते थे उनकी बैग में और बंडल में टाई कर देते थे और उन्हें पैक करके दे देते थे. राइटर आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. ओके, सो राइटर का रूटीन ईटिंग क्या था? चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. दादी उन्हें रोज़ ये खिलाती. वी वेंट टू स्कूल. शी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती मतलब रोटन चपाती, मतलब लाइक बासी चपाती. स्टेल चपाती मतलब ओके, तो मैं लिख लेती हूँ, आपको याद हो जाएगा. हिंदी समझ में आती है? बासी. ज़्यादा मैं अच्छी नहीं, लेकिन लिख दिया है हिंदी में. ओके, लेट मी राइट इन इंग्लिश बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है. बासी. ओके, स्टेल भी चिप गया यार. ओके, सो दिस ये स्टेल का मीनिंग. सो ये आप देख लो एक बार. सो स्टेल बासी चपाती वो किसको देती थी? वो डॉग के लिए रखती थी. विथ अ विलेज डॉग को जब हम स्कूल जाते थे, तब स्कूल से जब रिटर्न आते थे, तब वो डॉग जब आते थे रास्ते में तो दादी उनको दे देती थी. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज स्कूल वॉज अटैच टू टेम्पल. के school was attached to temple. That's why grandmother always come to school with writer. The priest taught us the alphabet and the morning prayers. Okay, so priest जो थे तो वो alphabet सिखाते थे, morning prayers सिखाते थे. With children sat in the rows in either side of veranda, sitting in the. Okay, what's veranda?
सो वेरेंडा मतलब वो बाहर बालकनी जैसा, मुझे what I research is balcony में like, yeah, we can tell it like balcony or approximately. Okay, so वेरेंडा मतलब आउटडोर साइड, बाहर की साइड. और okay, so alphabet for, okay, so where were we? While the children sat in the rows in other side of veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus, my grandmother sat inside the reading the scriptures. Okay, the grandmother used to sit inside and read scriptures. Scriptures मतलब भगवान की किताब. When we had both finished, we would have walked back together. Okay, so when they both would have finished their learning and playing, they used to go back together. This time the village dogs would mat us at the temple door. Okay, the dogs used to mat them at temple door. They follow us to our house, growling and fighting with each other for the chapatis we throw to them. Yeah, they used to throw chapatis, for which they used to fight with each other. When my parents were comfortably sat up in the city, okay, so they were comfortably settled, they sent for us. Okay, so it was a turning point of our friendship. There was a turning point in friendship between writer and granny. Okay, granny और राइटर के बीच there was some turning point उनकी फ्रेंडशिप का. Although we shared same room. Okay, so उधर जाके भी they shared a same room. My grandmother no longer came to school with me. कि अभी सिटी में जाते हैं तो बस आती है, व्हीकल जाता है लेने, तो ग्रैंड मदर को जाना नहीं पड़ता उनको रखना. I used to go to English school in motor bus. Okay, there was no dogs in the street. Okay, dogs भी नहीं थे street में. She took to feed sparrows in courtyards. So इधर क्या करती थी, डॉग्स तो थी नहीं तो वो स्पैरोज को कोर्टयार्ड में फीड करती थी. As years rolled, we saw less to each other. Okay, so years and years rolled और दादी और राइटर के बीच की जो फ्रेंडशिप थी और लेस होती गई, क्योंकि राइटर को भी पढ़ने जाना था और दादी वॉज गेटिंग ओल्ड एंड ओल्ड. सो फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप. कुछ समय के लिए वो उन्हें जगाती भी थी और स्कूल के लिए रेडी भी करती थी. बट व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड. तो जब वो स्कूल से आते थे तब उन्हें पूछते थे दादी कि स्कूल में क्या करवाया. तभी राइटर बोलते थे कि आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स. तो वो पूछती थी कि उनको स्कूल में क्या करवाया था. वो बहुत डिसपॉइंट होती थी कि इंग्लिश वर्ड्स और वो सब सिखाते थे तो, और वो उन्हें बोलते थे कि कुछ इंग्लिश वर्ड्स सिखाते थे, वेस्टर्न साइंस सिखाते थे, लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एंड एक्सेट्रा. ओके, दिस मेड हर अनहैप्पी. ओके, सो ये सारी चीज़ें उन्हें अनहैप्पी करती थी. ओके, रिमेंबर दिस थिंग्स. She could not help me with lesson. Okay, so she could not help the writer with lesson. She did not believe in the things that taught by the English schools. Okay, she didn't believe the things that taught by English schools and was distressed that there was no teaching about gods and scriptures. Okay, she was so disappointed that ये लोग गॉड के बारे में और गॉड की लाइफस्टाइल और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाते. तो दादी को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती थी. वन डे आई announced that we were being given a music lesson. तो म्यूज़िक लेसन एक बार दिया गया था राइटर को. She was very disturbed. To her, music had lived association. The monopoly of a harlot and a beggar are not meant for a gentle flock. Okay, तो दादी क्या बिलीव करती थी? दादी बिलीव करती थी कि म्यूज़िक तो वो लोग गाते हैं जिनका हमारी सोसाइटी में लो स्टेटस हो. ओके, सो वो लोग गाते हैं, इसलिए उनको नहीं पसंद था कि राइटर म्यूज़िक गाए.
शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेड डिसअप्रूवल. ओके, सो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन उनके साइलेंस से सब पता चल जा रहा था. शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट. उसके बाद वो बहुत कम बातें करती थी मुझसे. राइटर बोल रहे, आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन. सो अभी राइटर बड़े हो गए. राइटर गए अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए, तो उनको अपना खुद का रूम मिल गया था. तभी द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. ओके, सो फ्रेंडशिप की जो लिंक थोड़ी बहुत भी बच गई थी, वो भी पूरी तरह से क्लोज हो गई थी ग्रानी और राइटर के बीच में. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्ट सेक्लूशन विथ रेजिग्नेशन. ओके, तो ग्रैंड मदर ने क्या किया, अपना रेजिग्नेशन दे दिया मेरे लाइफ से. शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. ओके, सो वो हर वक्त अपने स्पिनिंग व्हील के साथ कुछ ना कुछ करते रहते थे, और उनके रेयरली बात करते थे किसी के भी साथ. फ्रॉम सन राइज टू सनसेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग अ प्रेयर. पूरे दिन उनका एक ही काम था, वो स्पिन करती थी व्हील्स या तो रिसाइट करती थी पोएम्स. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड स्पैरोज. ओके, आफ्टरनून में दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, सो मैं उसे अलग कलर से लिख देती हूँ. सो आफ्टरनून के समय में सिर्फ वो स्पैरोज को फीड करती थी. वाइल दे सैट इन अ वेरेंडा मतलब बाहर की बालकनी जैसा. ब्रेकिंग द ब्रेड इन द लिटिल बीट्स, वो छोटे छोटे टुकड़े करके. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड अराउंड क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिपरिंग. ओके, सो बहुत सारे बर्ड आके ब्रेड के टुकड़े खाते थे दादी के पास. दादी जो उनके लिए डालती थी तब. Some came and perched on her legs, on her shoulders, some even on her head. She smiled but never shooed them away. Okay, so दादी के सिर पे, पैर पे, शोल्डर पे, सारी जगह पे बर्ड्स बैठ जाते थे, लेकिन वो कभी भी उन्हें भगाती नहीं थी. उल्टा वो उन्हें स्माइल करती थी. It used to be the happiest half hour of a day for her. Okay, so it was the happiest half hour of her day when I decided to go abroad. Okay, so writer decided to go abroad for further studies. I was sure my grandmother would be upset. उन्हें पता था कि मेरी grandmother मुझसे upset होगी. I would be away for 5 years. Okay, so 5 साल के लिए मैं abroad पढ़ने जा रहा हूँ. And at the age of 1 I could never tell. तो उनका मैं कुछ कह नहीं सकता कि मैं उनसे मिल पाऊँ या ना, कुछ नहीं. बट माई ग्रैंड मदर कुड. मतलब वो कहते थे कि मैं 5 साल में, अब मैं कुछ कह नहीं सका कि मैं ग्रैंड मदर से फिर से मिल पाऊँ 5 साल के बाद, वो रहेंगी या नहीं रहेंगी. तो लेकिन वो बोलते कि नहीं, मेरी ग्रैंड मदर 5 साल रही, जीवित रही. ओके, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो सेंटिमेंटल भी नहीं थी. ओके, शी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन छोड़ने वो मुझे आई. कुछ रिएक्शन नहीं दिया, कुछ इमोशन नहीं दिखाया उन्होंने. हर लिप्स मूव इन प्रेयर, उनके लिप्स प्रेयर में मूव. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनके माइंड भी लॉस्ट था प्रेयर में. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बियर्ड्स ऑफ रोसरी. ओके, सो उनकी फिंगर्स वहाँ भी वो अपनी रोसरी लेके गए. रोसरी मतलब माला. साइलेंट शी किस्ड माई फॉरहेड, तो उन्होंने साइलेंटली मेरे हेड पे चुम्मा दिया, मतलब किस करिए. व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोमेंट imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. So राइटर ने चेरिश किया ये मोमेंट कि ये शायद मेरा और दादी का लास्ट कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है. तो उन्होंने ये चेरिश किया था ये मोमेंट. बट दैट वाज नॉट सो, ये नहीं था. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट स्टेशन. शी डिडंट लुक डे ओल्डर, वो ओल्डर नहीं दिखती, वो जैसी थी वैसी दिखी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. उस सेम दिन फिर से वो स्टेशन पे लेने आए, तभी भी उनके पास कोई वर्ड नहीं. वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, उन्होंने हक कर दिया. आई कुड हियर रिसाइटिंग ऑफ हर प्ले. उन्होंने जब मुझे हक किया तभी भी मुझे उनका प्रेयर की रिसाइटिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वॉज स्पैरोज whom she feed longer with a frivolous rebuks. Okay,
मैं जब घर आया तब भी उनका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था स्पैरो को फीड कराना। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर, लेकिन इस दिन इवनिंग में एक चेंज आया। तो वो चेंज क्या आया वो हम देखते हैं। आई एम जस्ट चूजिंग सम कलर्स। इवनिंग में एक चेंज आया था। शी डिडंट प्रे। इवनिंग में ये प्रे नहीं करती। शी कलेक्टेड वुमेन ऑफ द नेबरहुड, तो नेबरहुड की वुमेन्स को कलेक्ट किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्ट सिंगिंग। ओके, सो वो एक भजन कीर्तन जैसा कुछ अरेंज किया था फॉर सेवरल आवर्स। शी थम द सैगिंग, ओके, सैगिंग द स्किन ऑफ द डेलिपिलेटेड ड्रम्स। ओके, फटा हुआ, डेलिपिलेटेड मतलब फटा हुआ ड्रम। एंड sang on the homecoming of the warriors. Okay, so she sang some home, तो कुछ भजन गाए जिससे वो खुश हो गई कि मेरा पोता आ गया फिर से लड़ाई करके, अपनी पढ़ाई की लड़ाई करके मेरा बेटा आ गया, मेरा पोत्र आ गया। We had to pursue her to stop avoid overstraining. Okay, तो बहुत मौत शौक से बजा रही थी, हमें रोकना पड़ा कि बस आप अब मत बजाइए, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। नेक्स्ट वन शी वॉज टेकन इल। ओके, तो दूसरी मॉर्निंग वो इल हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। ओके, सो थोड़ा सा फीवर था और वो अच्छा हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। ग्रैंड मदर ने कुछ डिफरेंट सोचा। शी थॉट दैट हर एंड वॉज नियर, उन्हें लगा कि मेरा अब एंड नियर है। शी सेड सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट मोर टाइम टॉकिंग टू अस। ओके, सो उन्होंने बोला कि मेरे ज़िंदगी के अब कुछ चंद घंटों में मुझे आपसे बातचीत करके मेरा समय बर्बाद नहीं करना, मुझे अपने भगवान की प्रेयर में अपने कुछ पल गुजारने हैं। उन्होंने ऐसा बोला। फिर तो हम कितने इमोशनल हो जाते हैं ये पढ़ के। डिड यू फील इमोशन? आप इमोशनल हुए? आई गॉट इमोशनल। ओके, इट्स इमोशनल पैराग्राफ। वी प्रोटेस्टेड, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि आपको कुछ नहीं होने वाला, आप ऐसा मत बोलो। ओके, सो फैमिली ने प्रोटेस्ट किया। शी इग्नोर्ड हर प्रोटेस्ट, उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया वो उसको इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली वो बेड पे सो गई। टेलिंग हर बीड्स, वो बीड्स से जाप करती रही, माला जाप करती। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट और लिप स्टॉप मूविंग। ओके, सो वो उन्हें सस्पेक्ट करे उससे पहले उनकी लिप्स बंद हो गई, स्टॉप मूविंग, and the rosary fell from her lifeless fingers. Okay, and a peaceful pallor spread on her face, and we knew that she was dead. Okay, so daddy was now dead. We lift her off the bed से उन्हें लिफ्ट किया गया। as a customary laid her on the ground and covered her with a red short sprout. Okay, so हिंदू रिलीजन के हिसाब के हिंदू रिलीजन के हिसाब से उन्हें एक रेड श्रद्ध में लपेटा गया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग मतलब ग्रीफ, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट ऑफ हर फर्नल। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ क्रूड स्ट्रेचर टू हर, उन्हें अपने रूम में ले जाया गया। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम वेरेंडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। वी स्टॉप हाफ वे इन कोर्टियार्ड, वो उन्हें लेके जा रहे थे उनके अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन कोर्टियार्ड के हाफ वे से वो फिर से रिटर्न हो गया ऑल ओवर द वेरेंडा, फिर से वेरेंडा में आए इन हर रूम। एंड राइट ऑफ वेयर शी ले, उनकी डेड बॉडी को सुलाया गया। एंड स्टिव रेफ विद द रेफ शॉट, थाउजेंड ऑफ फेरोस डेड एंड स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर।
तो उनके वेरेंडा, वो जहाँ चिड़ियों को खाना खिलाती थी, फीड करती थी, वहाँ उन्हें लेटाया गया, उनके कोप्स को। एंड देयर वाज नो चीपिंग। चिड़ियों को भी बहुत सॉरो फील हुआ, तो वो चीप नहीं किया, वो इस बार वो चीप नहीं किए। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेल्ट सम। तो राइटर की मदर ने कुछ ब्रेड के टुकड़े डाले। शी ब्रोक इट इनटू अ लिटिल क्रम्बल्स द वे ग्रैंडमा यूज्ड टू एंड थ्रो टू देम। तो उन्होंने डाले, राइटर की मदर ने ब्रेड के क्रम्बल्स चिड़िया के लिए डाले। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। सॉरी। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। When we carried our grandmother's corpse off, they flew very away quietly. Okay, तो उन्हें भी सॉरो फील हुआ, उन्हें भी ग्रीफ फील हुआ, तो वो उड़ गए। हम जब राइटर इज टेलिंग, जब हम ग्रैंड मदर के कोप्स को वहाँ से लेके गए, तो जो चिड़िया थी वो भी उधर से उड़ गई। तो कितनी चिड़िया आई थी? थाउजेंड्स ऑफ चिड़िया आई थी। ओके, remember this, thousands of चिड़िया। The next morning, the sweeper wept the bread crumbles in the dustbin. Okay, so वो चिड़िया ने नहीं खाए ब्रेड के टुकड़े, क्योंकि उन्हें उनका दिल ग्रीफ से भर गया था। ओके, सो दादी माँ अब दुनिया में नहीं रही, तो उन्हें भी दुख हुआ, उन्हें भी सॉरो फील हुआ। कि ग्रीफ इज़ ऑल्सो सेम वर्ड ऑफ सॉरो, और इन हिंदी वी कुड टेल दुख और मॉर्न। ओके, सो दैट्स इट। तो दिस आर द क्वेश्चन आंसर्स जो आपको करने पड़ेंगे टिल हियर। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, लाइक, शेयर एंड subscribe. Thank you for seeing my video. I felt so good that आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा। सो आज हमने फिनिश किया द चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था। सो अभी हम ख़त्म करते हैं। सो लेट्स फिनिश आवर सेशन।